upper bound or big O. This is one of the most important topic of algorithm analysis. Now, upper bound is the way to represent the cost of an algorithm other than the actual cost. यानी कि algorithm की जो actual cost होगी, that is comprised of all the costs, comprised of the constants and all the steps of algorithm. यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उसमें क्या होगा कि हमारी algorithm के तमाम कॉस्ट इंक्लूडेड होंगे एंड दैट इक्वेशन में बी अ बिग इक्वेशन. जो रनिंग टाइम की एक्चुअल इक्वेशन होगी वो दैट में कंटेन अ नंबर ऑफ टर्म्स जो कि मे बी 4, 5 or 6 terms may be there. But in upper bound or big O notation, we represent the cost of an algorithm by the growth rate function. यानी कि वो एक ही फंक्शन होगा ग्रोथ रेट का, दैट इज अ टर्म ऑफ एन. एन का कोई ना कोई टर्म होगा, मे बी n, simply n, maybe n log of n, maybe n square, maybe n cube, or maybe exponential. यानी कि there will be only one term that will represent the overall cost of an algorithm. यानी कि actual cost जो होगी अगर if we use all the terms, यानी कि algorithm में actually जारी बात है जो भी एक एक step होगा उसकी cost वो actually count हो रही है, लेकिन in its representation of the cost function we'll be using the big O notation in which only a single term of n will be used. So one of the technique to use the only one term of algorithm is big O notation or upper bound. यानी कि big O and upper bound, they are the interchangeable terms used for the same thing, right? So let's see that the running time equation which is represented by t of n, यानी कि जो actual running time होता है उसको हम represent करते हैं with t of n. एक function है running time का which represents the actual running time of an algorithm. So here big O notation we are going to use to describe the algorithm. There are other terms as well that can be used to represent the cost of algorithm, but here we are going to use upper bound. So what an upper bound is? Upper bound of an algorithm represents the maximum cost that an algorithm can have in maybe worst case or maybe in average case. यानी कि किसी भी algorithm की maximum cost या maximum resource consumption जो हो सकती है, that is represented as upper bound. यानी कि उस algorithm को किसी भी circumstance में चला लें, कुछ भी कर लें, the cost will never exceed the upper bound. यानी कि upper bound एक limit है जो कि हम डिस्क्राइब करते हैं, जो कि हमें बताती है कि भाई algorithm की cost will never exceed that limit. वो एक limit determine हम कर लेते हैं and that limit says us that the algorithm's cost will never exceed that limit. यानी कि जब हमें पता है कि किसी algorithm का कि भाई ज्यादा से ज्यादा इसकी cost ये हो सकती है, then we are mentally prepared to use that algorithm. For example, if we are not aware of the big O or the upper bound of an algorithm, तो क्या होगा कि हमें उसकी maximum cost का कोई अंदाजा ही नहीं है, तो क्या होगा कि जो actual running time में भी वो किसी टाइम पे हम उसको चला रहे हैं तो वो कम आए, लेकिन वो मैक्सिमम आ तो सकता है, तो वो मैक्सिमम लिमिट हमें पता होगी कि अगर एक्सीडेंटली हमें उस एल्गोरिथम की किसी टाइम पे एग्जीक्यूशन के दौरान वो मैक्सिमम कॉस्ट आ गई,
तो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो थ्रू द अपर बाउंड वी estimate the maximum cost of an algorithm that it can have, right? So if the upper bound of an algorithm's growth rate is f of n, यानी सपोज करें कि एक फंक्शन है f of n जिसको हम कह रहे हैं कि भाई it is the maximum cost or upper bound, then we would write that this algorithm is in the set o f of n. अब उसको लिखेंगे कैसे? अपर बाउंड को लिखने का तरीका क्या है? बिग ओ यानी कि ओ एंड उसमें क्या होगा, को फंक्शन होगा f ऑफ n, यानी कि n का फंक्शन होगा, यानी कि पहले हम o लिखेंगे बिग ओ, देन देयर इज द फंक्शन जो कि उसकी रिप्रेजेंटेशन है उस रनिंग टाइम की, यानी कि एल्गोरिथम की कॉस्ट विल नेवर एक्सीड दिस अपर लिमिट. सो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई इट इज इन o f of n in the worst case और big O notation. तो अपर बाउंड हमें क्या बताता है? It gives us the maximum cost of an algorithm. For example, if n square grows as fast as t of n, the running time of our algorithm for the worst case input, we would say the algorithm is o n square in the worst case. Suppose करें कि एक algorithm है जिसकी ग्रोथ रेट हमें मिला है एन स्क्वायर, यानी कि ओवरऑल उसकी कॉस्ट है मुख्तलिफ उसमें के टर्म्स है, लेकिन उसमें जो बिगेस्ट टर्म है दैट इज एन स्क्वायर. तो वी कैन से दैट इट्स वर्स्ट केस कॉस्ट कैन नेवर एक्सीड एन स्क्वायर. तो उसका फंक्शन जो है वो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे या उसकी जो डेफिनेशन है वो किस तरह से होगी कि फॉर एग्जांपल T of n represents the true running time, यानी कि एक्चुअल रनिंग टाइम है. T of n क्या है? एक्चुअल रनिंग टाइम है. और f of n क्या है? एक फंक्शन है जो कि उसकी एल्गोरिथम की मैक्सिमम या अपर लिमिट को शो करता है, यानी कि उससे एक्चुअल रनिंग टाइम से वो बड़ा होगा, राइट? तो उससे वो जो है वो एक्सीड नहीं करेगा. टी ऑफ एन विल नेवर एक्सीड एफ ऑफ एन. सो उसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी? टी ऑफ एन इज इन सेट ओ, यानी कि बिग ओ एफ ऑफ एन. अब वो कब? जब हमने कहा कि भाई टी ऑफ एन क्या है? एक एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है, एक्चुअल रनिंग टाइम. और एफ ऑफ एन क्या है? वो एक एक्सप्रेशन है जो कि अपर लिमिट डिफाइन करती है टी ऑफ एन की, यानी कि वो एफ ऑफ एन टी ऑफ एन से बड़ा है. सो टी ऑफ एन इज इन सेट ओ एफ ऑफ एन इफ देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव कांस्टेंट्स c and n not such that t of n is less than or equal to c f of n. यानी कि क्या होगा कि जब हमने एस्टिमेट कर लिया f of n कोई फंक्शन उस रनिंग टाइम के लिए, तो टी ऑफ एन हमेशा उससे लेस और इक्वल टू होगा उस फंक्शन से मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट फॉर सम वैल्यू ऑफ एन. यानी कि वो जो हमारा क्लेम होगा अपर बाउंड का वो किसी न किसी जो है वो एन की वैल्यू यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन के लिए ट्रू होगा. तो विल सी द एग्जांपल्स, देन इट विल बी क्लियर टू यू. So constant n naught is the smallest value of n for which the claim of an upper bound holds true. यानी कि n naught is the smallest value of n for which the claim holds true. यानी कि कौन सा क्लेम? हमने कहा कि t of n क्या है? एक्चुअल रनिंग टाइम है, और f of n क्या है? वो फंक्शन है जो कि अपर बाउंड शो करता है. तो actual running time will always be less than or equal to the upper bound for some positive constant c and n. यानी कि n such that n is greater than n naught, यानी कि वो किसी लिमिट होगी n की जिससे ये हमारा क्लेम ट्रू होना शुरू होता है. तो we'll see this. अब यूजुअली क्या होता है कि this n naught is equal to 1, but this is not necessarily to be. जरूर नहीं कि वो 1 हो, पर मोस्टली ये हमारा 1 आता है. तो you must also be able to pick some constant, but it is irrelevant what the value for constant is.
एक्चुअली। तो हमें उसको जो प्रूफ करते हैं तो वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ सी, क्योंकि वी आर इन नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू प्रूफ दिस क्लेम कि भाई टी ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन। तो वो उसके लिए वी हैव टू पिक अ कांस्टेंट सी एंड वी हैव टू डिसाइड दिस फॉर लिमिट एन नॉट, यानी कि कहाँ से वो हमारा क्लेम ट्रू होना शुरू होता है। लेट्स सी नाउ वी हैव एन एल्गोरिथम, ठीक है। अब एल्गोरिथम है उसका ये रनिंग टाइम है, एक्चुअल रनिंग टाइम है। अब एक्चुअल रनिंग टाइम कहाँ से आया, कैसे आया? फॉर एग्जाम्पल के वी हैव like this, we have an algorithm कि उसमें हमारे पास क्या है फॉर, अब एक्चुअल रनिंग टाइम यानी कि ईच एंड एवरी कॉस्ट ऑफ द कोड इज इंक्लूडेड, या ईच एंड एवरी कॉस्ट ऑफ algorithm is included, right? तो I equals to 1, I less than or equals to less than or equal to n and I प्लस प्लस, राइट। अब ये क्या है? नेस्टेड लूप है। तो j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल टू n j प्लस प्लस। अब इसके अंदर कोई स्टेटमेंट है, राइट? नेस्टेड लूप है जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट है। तो अब ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है, वट एवर द स्टेटमेंट इज, राइट, वो कुछ भी हो सकती है। तो वो स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? n इंटू एन टाइम्स एन स्क्वायर टाइम्स, और उसको एक दफा चलाने का टाइम क्या होगा? c, right, some constant. Then in the same algorithm we have another step like this for k is equal to 1, k less than or equal to n and k less plus plus. So there is a statement which is executed for how many times? n times, because this is a single loop, right? अब ये जो स्टेटमेंट है, अब वट एवर द स्टेटमेंट इज, राइट, किसी भी किस्म की स्टेटमेंट हो सकती है, तो इट इज एग्जीक्यूटेड n टाइम्स, और 1 टाइम चलने की कॉस्ट उसकी क्या है? दैट इज सिंपली c। अब हम इसकी ओवरऑल कॉस्ट को अगर लिखेंगे एक्चुअल रनिंग टाइम, सपोज करें कि यही हमारी एल्गोरिथम है, ठीक है, उसमें कुछ और नहीं है, तो एक्चुअल रनिंग टाइम हम किस तरह से लिखेंगे? t ऑफ n इज इक्वल टू, अब एक दफा चलने की कॉस्ट क्या है? c, राइट? तो अब c इसकी कॉस्ट है, c इसकी कॉस्ट है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। दे मे बी द टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स, तो इसको हम कर रहे हैं रिप्रेजेंट, सॉरी, विथ c1, राइट? तो c1, और ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा? This is a nested loop, so this statement will execute n square times, because this inner loop runs n times and this outer loop also runs n times. So this statement will execute n square times, and the cost for running it 1 time it is c1, right? और तो n स्क्वायर टाइम्स चलेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट इसकी क्या होगी? c1 n स्क्वायर, यानी कि दिस पीस ऑफ कोड, अब इतना जो पीस ऑफ कोड है उसकी हमारी कॉस्ट क्या हो गई? c1 n स्क्वायर। सो दिस एल्गोरिथम आल्सो हैज दिस स्टेप एज वेल, उसके नीचे, यानी कि ये जब स्टेप चलता है उसके बाद वी हैव दिस स्टेप एज वेल। सो उसकी कॉस्ट क्या है? अब इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट है, उसकी चलने की कॉस्ट क्या है? इसको हमने c1 किया है, अब कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती है, तो इसको हमने क्या किया है? फॉर एग्जांपल c2, देन वी सी हाउ मेनी टाइम्स दिस रन्स। अब इसको हमने क्या किया? c2, और कितनी दफा चल रही है ये स्टेटमेंट, कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी? n टाइम्स।
तो टोटल ओवरऑल रनिंग टाइम इसका क्या होगा, n C2n for this statement. For example, this algorithm has just these statements, यानी कि इस algorithm ये यहाँ पे end हो जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. अब whatever it is, क्या कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो we are just interested in finding the cost of algorithm and finding the estimating the big O notation for this algorithm. ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, actual running time. Now we are interested in determining the big O notation for this algorithm. अब big O कैसे हम estimate करेंगे? We will have to determine a growth rate function that is greater than, actually greater than this. यानी कि एक्चुअली इससे इस जो हमारा रनिंग टाइम है उससे ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल, यानी कि उससे ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए, सो दैट हमें पता चले कि भाई रनिंग टाइम उस जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं उससे कभी भी एक्सीड नहीं करेगा. तो मैक्सिमम लिमिट वी आर गोइंग टू डिटरमाइन. तो लेट्स सी, हमने एक्चुअल रनिंग टाइम लिया, ठीक है. सो वट एवर द एल्गोरिथम इज, हमने देखा कि किस तरह से ये टर्म हमारे लिए आया है. तो हमने इसको लिया कि भाई इट इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू C1 n स्क्वायर प्लस C2 n. ठीक है, अब C1 इज अ कांस्टेंट, यानी कि वो स्टेटमेंट चलने के लिए वो टाइम है, वन टाइम चलने के लिए उसका टाइम रिक्वायर्ड कांस्टेंट है जो कि C1 है, और जो यहाँ पे भी है इसको वन टाइम चलने का टाइम जो है वो C2 है, और n टाइम चलेगा तो ओवरऑल टाइम क्या होगा, C2n. तो ये क्या है हमारा एक्चुअल रनिंग टाइम. नाउ वी हैव टू एस्टिमेट और वी हैव टू मेक अ स्टेटमेंट दैट इज ग्रेटर देन दिस वन, यानी कि इससे अब दिस एक्चुअल रनिंग टाइम शुड बी लेस देन द स्टेटमेंट दैट वी आर गोइंग टू मेक फॉर बिग O. अब इससे ये एक्चुअल हमारी है, और you can see that C1 n square plus C2 n square इससे ग्रेटर होगा. अब ये क्या है, C1 n square plus C2 n, यानी कि हमें ऐसी स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड भी हो, लेकिन इट शुड बी ग्रेटर देन द एक्चुअल रनिंग टाइम. तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल क्या है कि वी टेक, अब यहाँ पे कितने टर्म्स है, दो टर्म से, राइट, दिस वन, यानी कि इस एल्गोरिथम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. जब प्लस बीच में आता है तो वो दो डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्चुअली. सो एक जो पार्ट है उसमें हमारे n की जो पावर है दैट इज n स्क्वायर. सेकेंड पार्ट में हमारा n पे पावर क्या है, सिंपली n, राइट, सिंपली हमारा n है. अब हमें एक ऐसी स्टेटमेंट चाहिए जो कि इससे ग्रेटर हो, राइट. अब इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे, भाई दिस इज जो एक्चुअल रनिंग टाइम है, एक्चुअल जो रनिंग टाइम हमारा है लाइक दिस वन, ठीक है, इट इज लेस देन और इक्वल टू C1 n स्क्वायर प्लस C2 n स्क्वायर, यानी कि ये हमारा क्या है, एक्चुअल रनिंग टाइम, जो कि हमने यहाँ पे लिखा C1 n स्क्वायर प्लस C2 n. अब ये किससे, C1 n स्क्वायर प्लस C2 n स्क्वायर, यानी कि दोनों पे हम n पावर n स्क्वायर दे दें. एक्चुअल हमारा क्या है, C1 n स्क्वायर प्लस C2 n, यानी कि वी हैव टू डिटरमाइन, हमें एक ऐसा टर्म बनाना है, राइट. तो उसमें क्या होना चाहिए कि दैट शुड बी ग्रेटर. अब ये दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, तो वो हमें निकालना चाहिए, कोई ऐसा टर्म बनाना चाहिए, राइट. अब इसमें क्या है कि n स्क्वायर इज कॉमन, तो वी टेक n स्क्वायर इज कॉमन एंड C1 प्लस C2 को हम अलग करेंगे. तो दिस इज C1 प्लस C2 n स्क्वायर. तो वी कैन से दैट T ऑफ n is less than or equal to C1 plus C2 n स्क्वायर. इसको हम किस तरह से लिखेंगे
के टी ऑफ एन, ठीक है। अब टी ऑफ एन का जो फंक्शन है, ठीक है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, किससे लेस और इक्वल टू होना चाहिए, जो कि हमने फंक्शन डिटरमाइन किया। वो हमने क्या किया था एक्चुअली, C1 प्लस C2 n square. Now we can say this is big O for this one, यानी कि इसको अगर हम इस तरह से लिखें कि भाई C1 और C2 उन दोनों को हम कंबाइन करें एक C में, तो we say that when C equals to C1, when C equals to C1 plus, sorry, C equals to C1 plus C2, then, ठीक है, when C equals to C1 plus C2, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, we'll replace C1 plus C2 with C, right? So we'll be writing it like this, कि भाई T of n is less than or equals to C, right? So C is actually C1 plus C2, C1 n square, sorry, Cn square. So what is n square? N square is a function. So we can say that T of n is less than or equal to C into f of n. F of n. When this happens, right? When this happens, then we can say that, अब ये definition हमें क्या बताती है कि but when T of n is less than or equal to that T of n is less than or equal to C of n, it means that T of n is in OF of n. यानी कि अगर हमारा T is less than or equal to C into F of n है, तो it means के it is T of n is in big O F of n. So we can determine that T of n is in big O F of n, और F of n हमारा क्या है, F of n is equal to, हमारा F of n का क्या है, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं कि F of n हमारा क्या है, F of n is equal to n square, हमारा जो फंक्शन है F of n का, that is n square. So we can say that T of n is in O, T of n is in O n square. अब now we are going to prove this. We have to prove this as well. ठीक है, how we are going to prove this, कि if we take, अब ये हमें बताया गया, ठीक है, तो अब ये हमने चीजें की कि भाई इसका जो है वो बिग O n स्क्वायर है, तो वी हैव टू प्रूव कि वाकई ये है या नहीं. तो फॉर दिस वी आर गोइंग टू टेक सम कांस्टेंट्स, यानी कि अब यहाँ पे हमारे पास T ऑफ n की जो एक्चुअल इक्वेशन है वो क्या है, C1 n स्क्वायर प्लस C2 n. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि फर्स्ट वी टेक C1 इक्वल्स टू 1, C2 इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 1. सबकी जो है वो वैल्यूज हम 1 लें, राइट? फिर उसको what should we do, we put it into the this T of n, यानी कि इसको हम T of n में इंसर्ट करें. देन दूसरा क्या है कि हमने क्लेम जो किया है Cn स्क्वायर का, कि Cn स्क्वायर
से इट इज लेस देन और इक्वल्स टू सी एन स्क्वायर। सी को हमने क्या लिया, C1 प्लस C2। तो व्हेन वी पुट दीज वैल्यूज इन दिस, यानी कि सी एन स्क्वायर, देन यू विल सी दैट this Cn square will be greater than T of n. So we take these values again. I'm going to write them here. तो हम ये फंक्शन लें T of n equals to C1 n square plus C2n, यानी कि ये हमारा n वाला फंक्शन है। ऑन द अदर हैंड वी टेक जो कि फंक्शन हमने लिया है ग्रोथ रेट का, वो क्या है हमारा Cn स्क्वायर, यानी कि C इंटू एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन हमारा क्या है, n स्क्वायर, तो वी टेक इट एज Cn स्क्वायर, Cn स्क्वायर फॉर, यहाँ पे हमने क्या लिया है है। अब ये जब हम क्लेम करने जा रहे हैं तो हमने कहा कि भाई RC इक्वल्स टू C1 प्लस C2, राइट, C1 प्लस C2। तो दिस इज our claim that we are going to prove C1 plus C2. Now we take the values. अब हम क्या वैल्यूज लेंगे कि भाई हमने सपोज किया कि if we say that C1 is equals to 1, यानी कोई भी हम कॉन्स्टेंट वैल्यूज लें, राइट। पहले हमें सिंपल कोई भी वैल्यूज के लिए हम उसको प्रूफ करना चाहेंगे। C1 equals to 1, then we take C2 also equal to 1 and take n equals to, क्योंकि हमारे पास यही टर्म्स यूज हुए हैं इसमें, तो उनको हम प्रूफ करना चाहेंगे n equal to 1। अब ये हम यूज करने जा रहे हैं। तो पहली इक्वेशन में अगर हम डालेंगे T of n के लिए, राइट, अब T of n, उसमें ये वाली जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास क्या है, C1 की वैल्यू, C1 क्या है, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 1, तो 1 इसका स्क्वायर क्या है, 1 इंटू 1 प्लस C2 की वैल्यू क्या है, दैट इज आल्सो 1 इंटू n, ठीक है, n की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो दैट इज इक्वल टू, ये अगर हम करेंगे तो 1 इंटू 1 ये हमारा क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज आल्सो 1, सो 1 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पे आए, उसको हम प्रूफ करें कि भाई Cn स्क्वायर, अब यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, C1 और C2 की वैल्यूज हमें गिवन है, और यहाँ पे जो हमने C लिया है दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C हमारा ये है, सॉरी, C1 की वैल्यू 1 है और C2 की भी वैल्यू 1 है। तो हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि भाई दिस इज लेस देन दिस वन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, ठीक है, ये उसके बराबर हो सकता है पर इससे कम नहीं हो सकता, राइट। तो अब यहाँ पे हम इसको डालें कि भाई C की वैल्यू क्या हो गई, C इक्वल्स टू 2, तो इसमें हम इसको डालें तो ये वाले इस वाले फंक्शन में, राइट, Cn स्क्वायर, तो C की वैल्यू हमारे पास 2 है और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 स्क्वायर, राइट, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। ओके, फॉर दिस वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यूज के लिए इफ वी टेक, अब हम कोई भी और वैल्यूज लेना चाहें, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर एक वैल्यू के लिए ट्रू है तो वो तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हो।
तो उसके लिए हमें प्रूफ करना होगा, डिफरेंट वैल्यूज अप्लाई करनी होगी। अगर वो उस पे हो रहा है तो हम कहेंगे कि भाई हाँ, नाउ दिस क्लेम इज ट्रू। नाउ फॉर एग्जांपल इफ वी टेक C1, अब कुछ भी वैल्यूज हम लेते हैं, रेंडम वैल्यूज, वी आर गोइंग टू टेक C1 इक्वल्स टू 2, मे बी C1 equals to 2. So we take C2, we take the value for to C2, that is equals to maybe 3, or we take value for n की वैल्यू हम ले, that is maybe, हम कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे we are taking it 5, right? बिकॉज इसके लिए तो हमारा क्लेम फॉर 111 ये क्लेम हमारा ट्रू प्रूफ हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट वेदर इट इज ट्रू फॉर अदर वैल्यूज ऑफ C1, C2 and n. Now we are going to insert these values in this equation. So T of n equals to C1 n square, right? So what is our C1? It is 2 into n square. N की value what we have taken? It is 5. So we take 5 square, 5 into 5. Then what is the next value? Next term it is C2n. So what is our C2? C2 is 3 and multiplied by n. So what is our n? N is equals to 5. Now we are going to see that what is the total of these are. So 5 into 5, that will be equals to 25. So 2 multiplied by 25 plus, ठीक है, तो 3 multiplied by 5, it is 15. So ये क्या होगा हमारा, 2 into 25, that is 50. 50 plus 15. So this will be equal to 65. Now we are going to see whether this is less than this or not for these values of C1, C2 and C3. ठीक है, अब बिग ओ के लिए हम करने जा रहे हैं। वो बिग ओ की हमारी एफ ऑफ एन जो हमारा बिग ओ के लिए हमने लिया है, दैट इज CN स्क्वायर। ठीक है, अब CN स्क्वायर हम हमारा जो है फंक्शन है उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, राइट? सो व्हाट वी डू, वी टेक C। अब C हमारा क्या है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, क्योंकि ये हमने डिफाइन किया हुआ है। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2। नाउ व्हाट इज C? C is equal to C1 plus C2. So C1 equals to 2 and C3 equals to 3. So हमारा C क्या होगा? C will be equal to C1 plus C2 जो कि 2 plus 3, it is equal to 5. यानी कि हमारा C क्या है, 5 है। तो 5 multiplied by n square. So what is n square? N is 5. Right, we took n equals to 5. So 5 square will be 5 multiplied by 5. So what it will be, 5 multiplied by 5 square हमारा हमें क्या मिलेगा, 25. So what will be this value, 125. Now you can see कि ये value क्या है, 125 है, और ये हमें क्या है, 65. Now whatever the values of C1, C2 and n you take, this claim will be true. अब for what minimum value it is true? So वो minimum value क्या थी, जब ये दोनों बराबर आए थे, वो क्या था, when we took n equals to 1, यानी कि n हमने जब 1 लिया था, क्योंकि C1, C2 की तो क्या भी वैल्यूज लेंगे तो ये हमारा ट्रू आएगा ही आएगा, लेकिन we have to determine the values of value of n. तो minimum value of n was 1. So we can say kt of n is in t of n is in C
एफ ऑफ एन, सी इंटू एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन हमारा जो फंक्शन है दैट इज एन स्क्वायर, ठीक है, वो हमारा फंक्शन जो है वो एन स्क्वायर है फॉर, ठीक है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, यानी कि हम इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, फॉर पॉजिटिव कांस्टेंट c इक्वल टू C1 प्लस C2। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि c को हमने क्या लिया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं बताएंगे, बट विल से दैट इट इज C1 प्लस C2। अब व्हाट एक्चुअल वैल्यूज वी आर टेकिंग, तो कुछ भी होनी चाहिए, ये दिस क्लेम शुड बी ट्रू। अब वैल्यूज हम क्या भी दें, एंड n should be greater than or equal to n naught, and here हमारा जो n naught हमारा क्या है, for the smallest value of n हमारा जो है वो है we took here n equal to 1, यानी कि n is greater than or equal to n naught। तो n naught हमारा क्या है एक्चुअली, अब जब n naught is equal to 1, ठीक है, तो we can define here कि भाई r n naught is equal to n naught is equals to 1, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है ये, राइट। So if you have any questions regarding big O, you can ask me. Okay, I hope it is clear to you.